Now, this session is on emotional intelligence. The first part is going to be an overview, and tomorrow I'll do the assessment part. Now, you must have heard of this word emotional intelligence. I think normally you must have heard of intelligence, IQ, intelligence quotient. People were more impressed by that, and they were looking for people who were very bright and intelligent. And in selection committees also, people were looking for people who are very intelligent. But in the past, I would say about 30, 40 years, there has been a change. And gradually, people have started accepting the concept of emotional intelligence and why it is important. So, in the first phase, what I'll do with you is uh, what is emotion and how we can manage our emotions, and what is emotional intelligence and how does it help us in our profession, whether we are teachers or whether we are administrators or whether we are a policeman or whether we are a social worker or in an industry. In fact, in industry, they are much more advanced. They have accepted the concept of emotional intelligence, and I have been doing work with industry also. So they request me to come in for the interview and measure people's emotional intelligence more than intelligence, IQ. And the emotional intelligence pays dividend much more than intelligence. So first of all, we see how far emotional intelligence is relevant and what is the emotional mind and what are the emotions and how they are relevant. Okay. आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? हेलो, कोई बताएगा? Are you understanding me? जी मैम। अच्छा, थैंक यू। अगर कहीं नहीं समझ आए तो प्लीज यू हैव द फ्रीडम टू आस्क मी। ओके। अब इमोशनल माइंड, एक तो होता है ना इंटेलेक्चुअल माइंड एंड एक होता है इमोशनल माइंड। आई एम मिक्सिंग अप माय लैंग्वेज बिकॉज आई नो यूजिंग वर्नेकुलर हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड बेटर। इज इट ओके विद यू? मिक्स्ड लैंग्वेज यूज करूं? यस मैम। Okay, thank you. This may be a little impulsive and powerful and have intuitive thinking. Impulsive है, impulsive समझते ना कि फटाक से कर दिया, जल्दी सी चीज कर दी, लेकिन पावरफुल बहुत है। मतलब इसमें ताकत जो है वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा है। एंड इट हैज इंट्यूटिव थिंकिंग। आप सोचेंगे इंट्यूटिव थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग तो थिंकिंग है। व्हाट इज इंट्यूटिव थिंकिंग? इंट्यूटिव थिंकिंग होती है, कहते हैं ना, फलाने इंसान की तीसरी आंख है, वो बात बिना होए समझ लेता है, वो इंसान को पहचान लेता है। दैट इज इंट्यूशन। इसको हम थोड़ा सा आगे भी चलिए, पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना यहाँ चाहती थी कि व्हाट इज इंट्यूटिव थिंकिंग। दैट वी अंडरस्टैंड द पर्सन without even interacting with that person, just looking at his face, we start understanding that person. It may be sometimes little illogical, क्योंकि आप जब इंट्यूटिव बात करते हो, कहते हो, जैसे हस्बैंड वाइफ के बारे में मैं बताती हूँ आपको। I'm a counselor, so people come to me for counseling also. Now, in the case of husband wife, it very often happens that the husband brings somebody and says, मैं इसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, और जब वो जाता है, वाइफ कहती है, मुझे नहीं ये आदमी ठीक लग रहा। तो कहते हैं, तुम पागल हो, एक बार देखने से तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो? women have more intuitive sense. तो देख के ही उनको, कहते हैं ना, एलाम हो जाता है, पता चल जाता है कि ये। तो हस्बैंड कहता है तुम बहुत इलॉजिकल हो। ये कोई तरीका होता है कि देखा और कह दिया कि नहीं वो तो ठीक नहीं है? सो इट मे सीम समटाइम्स इलॉजिकल, बट इट हैज कन्विक्शंस। और वो कन्विक्शंस ऐसी होती हैं कि बाद में हस्बैंड कहता है हाँ तुम ठीक कह रही थी, वो आदमी ठीक नहीं निकला, पर तुम्हें कैसे पता चल गया? But women have that intuitive sense much more than men have. Sorry, men हुआ ये नहीं कि आपके पास भी है, पर somehow nature has given that more to women. Then it is distinction between head and heart. हम कहते हैं ना, दिल से बात कर रहा है, दिमाग से बात कर रहा है. There is distinction between head and heart.
which is means logical and emotional aspects. The logical aspects are head, reasoning, problem solving, all this is head. And emotional aspect is the feeling component, what that gives to you. Okay. Now, how do we view emotions? Emotions की बात तो हो रही है, पर 1940s तक मैंने आपको कहा ना कि पिछले 40-50 साल में ही ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हुई. People used to condemn. अगर कोई कहता ना भाई इमोशंस को देखो, इमोशंस को समझने की कोशिश करते कि इट्स chaotic, इमोशंस आर chaotic, you don't have to listen to them. haphazard है, इमोशंस chaotic हैं, सुपरफ्लुअस हैं, इनका कोई माने मतलब नहीं है, इमोशंस की मत परवाह करो, इनकम्पैटिबल हैं विद रीजन, लॉजिक के साथ नहीं चलते, रीजनिंग के साथ नहीं चलते, तो इनकम्पैटिबल हैं, इनका कोई माने मतलब नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऐसे इधर उधर बातें करते रहते हैं फिजूल की, इमोशन कोई चीज नहीं है. एंड लार्जली विसरल, विसरल मींस बॉडी के साथ रिलेटेड है. एंड देन रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ इफेक्टिव एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, ऐसे ही फिजूल की चीजें चलती हैं. तो दिस वाज कंडेमिंग इमोशंस. तो इमोशंस का कोई माने मतलब नहीं था. 1940s तक इमोशन की कोई परवाह नहीं करता था. इंटेलिजेंस टेस्ट बने, सिलेक्शन इंटेलिजेंस टेस्ट के बेसिस पे होती थी, आर्मी टेस्ट बने, आर्मी के लिए सबसे पहले टेस्ट बने इंटेलिजेंस के. इमोशंस की तो कोई बात ही नहीं करता था, फिजूल की चीज है. लेकिन अब मोर रिसेंटली, मैं रिसेंटली ये कह रही हूँ कि समझिए 40-50 साल के बाद ये जो चीजें शुरू हुई, अब जो है हम इमोशंस को समझते हैं और उसको इंपॉर्टेंस देते हैं. क्या? इट अराउजेस, सस्टेन्स एंड डायरेक्ट्स एक्टिविटी. आपकी मोटिवेशन जो है वो इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है. सस्टेन करते हैं, अगर आप एक काम परमानेंटली करना चाहते हो, तो अगर आप इमोशनली इसके साथ अटैच हो तो आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे. एंड डायरेक्ट्स एक्टिविटी, आप जब इमोशनली किसी चीज के साथ अटैच्ड होते हो तो आपको थकावट नहीं होती, आप बहुत काम कर लेते हो. एंड पार्ट ऑफ द टोटल इकोनॉमी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इंसान की जिंदगी के साथ इमोशन जुड़ी हुई हैं. ओके, नॉट इन ऑपोजिशन टू इंटेलिजेंस. इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंस को इमोशन डिनाई करते हैं. नो, themselves are higher order of intelligence. इंटेलिजेंस के साथ जुड़ के आपको एक बेटर इंसान बनाती हैं. Now, emotional processing may be an essential part of rational decision making. Rational जो आपका इंटेलिजेंस फैक्टर सो कॉल्ड है, उसके साथ जब इमोशनल प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो एसेंशियल पार्ट बन जाती है, और फिर आप का डायरेक्शन देती है, वो आपको मार्ग दिखाती है जिंदगी के अंदर, कहाँ जाना है, कहाँ मुड़ना है, वो आपको देती है. तो देखिए ये बहुत बड़ी चीज हो गई ना. जिन इमोशंस को हम बिल्कुल कंडेम करके चलते थे वो आपका मार्गदर्शन करती हैं. देयर इज अ बायोलॉजिकल पर्पस ऑफ इमोशन. इमोशन का बायोलॉजिकल पर्पस है कि आपकी जिंदगी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो शरीर में चेंजेस आते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रभाव है इमोशंस का. सिग्नलिंग फंक्शन दैट वी माइट टेक एक्शन. मतलब इमोशन आपको बॉडी को साथ प्रिपेयर कर देती है, तैयार कर देती है कि अब आप एक्शन ले सको. प्रमोट्स यूनिक स्टीरियोटिपिकल पैटर्न्स ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस. अब ये क्या है? प्रमोट्स यूनिक स्टीरियोटिपिकल पैटर्न्स ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस. आपको पता चल जाता है कि गुस्से में मेरे अंदर क्या हो रहा है, प्यार में क्या हो रहा है, डर में क्या हो रहा है. फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी में सारे चेंजेस आ जाते हैं और वो आपको समझ आने लगते हैं. प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग impulse to take action, and then when you want to take an action, it makes body ready to take that action. अब आप देखिए जैसे कि डर is an emotion, fear is an emotion. When you are very much frightened of something, तो आप ऐसी दौड़ लगा सकते हो जो आपने कभी जिंदगी में ही नहीं लगाई होगी. तो आपको एनर्जाइज कर देता है, एक्शन ओरिएंटेड कर देता है. आपको अपने आप को बचाना है, कोई आपको अटैक कर रहा है, बचाना है, और आप
छोटे से वीकलिंग हो, छोटे से कमजोर से हो, लेकिन आपको इतनी ताकत दे देता है कि आप उसको मार नहीं लेते हो और अपने आप को बचा लेते हो। तो ये क्या हो रहा है, आपको आपके पूरे बॉडी को एनर्जाइज कर देते हैं इमोशन, ताकि आप वो एक्शन ले सको। ये आपने कभी सुना नहीं होगा, शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि क्या ये ऐसा होता है। हाँ, होता है। कमजोर से कमजोर आदमी में ताकत आ जाती है जब आप इमोशनली अराउज्ड हो। Then basic emotions are presumed to be held by they're hardwired मतलब जो बेसिक इमोशंस हैं दे आर देयर इन एवरीबॉडी, सबके पास हैं, एंड डिस्टिंक्ट भी हैं, फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट भी हैं। कैसे? दो तरह की इमोशंस होती हैं, एक होती है प्लेजेंट, एक होती है अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का एक और तरह का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, प्लेजेंट का एक और तरह का इफेक्ट होता है। अब देखिए, जॉय इज एन इमोशन, इज इट प्लेजेंट और अनप्लेजेंट? सोच के देखिए कैसा है, प्लेजेंट है अनप्लेजेंट है? बताइए, आप में से कोई भी बताइए। प्लेजेंट मैम। हाँ, प्लेजेंट वन। सरप्राइज दो तरह का होता है, प्लेजेंट भी हो सकता है, अनप्लेजेंट भी हो सकता है। अब सैडनेस देखिए, सैडनेस प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है? अनप्लेजेंट मैम। वेरी गुड। एंगर अनप्लेजेंट। हाँ, बिल्कुल ठीक है। डिस्गस्ट, किसी से नफरत करना, हेट्रेड, अनप्लेजेंट। बिल्कुल। फियर इज मैम, कैन इट बी बोथ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट? फियर भी अनप्लेजेंट है, जब डर लगता है तो बहुत अनप्लेजेंट होता है। और लव, अब आप देखिए लव को लाल रंग में क्यों रखा है? क्योंकि खतरा। लव बहुत प्लेजेंट होता है। लव आपकी जिंदगी के अंदर बाहर ला देता है, लव खुशियां ला देता है, एंड हैप्पीनेस। हम सब हैप्पी होना चाहते हैं, पर हम समझते नहीं कि कैसे हैप्पी हों। ये थोड़ी सी इमोशंस मैंने आपको बताई हैं, और भी बड़ी सारी होती हैं, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब आपकी इमोशन है। लोनलीनेस, गिल्ट फीलिंग, ये सब इमोशंस हैं आपकी, प्लेजेंट भी है, अनप्लेजेंट भी है, और इनका आपकी जिंदगी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जिंदगी इन्हीं के थ्रू चलती है। हाँ, दिमाग के थ्रू भी चलती है, लेकिन दिमाग किस तरफ जाता है वो आपकी इमोशंस कंट्रोल करती हैं। मैनेजिंग आवर ओन इमोशंस, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमने अपने इमोशंस को मैनेज करना है। कैसे? दिस इज कॉल्ड EI इज इमोशनल इंटेलिजेंस। लाइक स्मोक अलार्म क्या होता है? जब आग लग रही हो तो पहले धुआं उठता है, और धुआं उठता है तो कहते हैं ओहो कहीं आग लग रही है, तो अलार्म हो जाता है ना। स्मोक क्या करता है? अलार्म दे रहा है। तो इसी तरह EI भी जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके अंदर एक अलार्म जगाती है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला है। वी आर नॉट गुड एट इन्फ्लुएंसिंग वेदर अ पर्टिकुलर इमोशन विल अराइज। हमें पता नहीं लगता कि भाई इमोशन अराइज हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन हाँ, अंदर से महसूस शुरू हो जाता है। जैसे व्हेन यू आर गेटिंग एंग्री, आप सोच के देखिए, जब आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, अंदर से एक तरह की फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, मुंह तमतमा जाता है, सांस बढ़ जाती है, होना शुरू हो जाता है ना कि नहीं, तो अलार्म शुरू हो जाता है। AI tells us something is arising। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बताती है कि हाँ कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब जैसे मेरा आज सुबह इंटरनेट वो हो गया, ओ गॉड, आई वाज रियली टेंस, बहुत एंजाइटी हो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और आप हैरान हो गए। मैं डॉक्टर सुनील दत्त से कहती, बड़ी हंसी की बात हुई, मैं जिंदगी भर पावर वो क्या कहते हैं पेन ड्राइव यूज करती रही हूँ, और आज जब पेन ड्राइव में मैंने ये भर के यहाँ लाना था, मुझसे पेन ड्राइव ना चले। फिर मैंने अपने आप को काम हंसी, अपने आप का बाबा इमोशनल इंटेलिजेंस कराने जा रही हो, कंट्रोल योर इमोशन एंड थिंक लॉजिकली रीजनली। फिर मैं PC में गई, फटाफट उसको खोला करा और यूपीएस में डाल के लेके आई। यहाँ तक आप डिस्टर्ब जब हो जाते हो तो आपको पता चल जाता है अपने अंदर से कि हाँ डिस्टर्बेंस हो रही है। We do have tremendous individual variability in the degree to which we can
consciously limit the duration of our unpleasant emotion. अब ये देखिए, consciously limit, हमें ये जब होती हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस, एक अंदर से पता चल जाता है, एंड इफ वी आर कॉन्शियस ऑफ दिस, तो हमें उसको कंट्रोल करना आ जाता है ना. एंड द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द बिहेवियर विच मे अराइज, और साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि बिहेवियर का क्या होगा. आपको जो मैंने ये बताया कि भाई मुझे इतनी घबराहट हो गई कि अब क्या होगा, मेरा लेक्चर क्या होगा, ये देखो कनेक्ट वालों ने मेरे साथ गड़बड़ कर दी है, तो घबराहट में भूल गई कैसे, भाई पेन ड्राइव में डालो, फिर डीप ब्रीदिंग करी, सांस लिया, कहा कि नहीं, आई हैव टू कंट्रोल माय इमोशन, आई एम फीलिंग ओके. तो मैंने क्या करा, अपनी एआई को जगाया और इन्फ्लुएंस करा, कहा कि तुम अपनी इमोशन कंट्रोल कर सकती हो, तुम कर सकती हो. और फिर मैंने ये पेन ड्राइव में डाल के आपके लिए ले आई, बना के तो रखी हुई थी सारा कुछ. तो लेकिन घबराहट ने क्या करा, काम को गड़बड़ करने की कोशिश करी. आप समझ रहे हो, ये मैं अपना एग्जांपल आज का ताजा ताजा आपको दे रही हुई है. पता लग रहा है आपको, आपके साथ भी ऐसी चीजें हुई होंगी. जब आपको घबराहट हो जाती है तो घबराहट में सोच सारी बिखर जाती है, थिंकिंग गड़बड़ हो जाती है. लेकिन अगर आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग करके नहीं, आई एम गोइंग टू कंट्रोल इट, आई एम गोइंग टू कंट्रोल इट, तो आप कंट्रोल कर लेते हो. अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, एंगर. जब आप गुस्से होते हो तो क्या होता है, आपकी लॉजिक काम करती है, आप समझ से काम करते हो नहीं. मैंने क्रिमिनल साइकोलॉजी पे भी काफी कुछ पढ़ाया हुआ है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एग्जांपल क्या देती हूँ, एक्चुअल चीज देती हूँ. मैं स्टूडेंट्स को लेके जाती थी फॉर फील्ड एक्सपीरियंसेस, सो आई टुक देम टू एन ओपन जेल. वहां पे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, सरदार, सफेद दाढ़ी वाले बैठे हुए थे, और मैं सोचूं कि तो आदमी बहुत सन्यासी सा लगता है, ये कैसे यहाँ जेल में पहुंच गया. तो हम गए, उनको बाबा जी, तब मैं काफी यंग थी तो मैं बाबा जी कह सकती थी, तो मैंने स्टूडेंट को साथ लेके गई. तो मैंने कहा, पूछते हैं, बाबा जी आप यहाँ कैसे आ गए हो. तो बाबा जी ने कहा, पुत्र बैठो, मैं बताता हूँ मैं कैसे आया. कहता, गुस्सा जो होता है ना, आदमी को डुबो देता है. यही वर्ड मैंने यूज किया. मैंने कहा कैसे. कहते हैं, मैं बड़ा खुशहाल घर में रहता था, मेरे एक बेटा था, बहू थी, एक पोता था. कहते मेरा बेटा आया और कहने लगा, बापूजी मैं बनानी नहर को चेंज करके दूसरे खेत में डालना चाह रहा हूँ. मैंने कहा नहीं, उसको वही रहने दे जहाँ पे है. उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो भर गया, मैं दूसरे में डालना. मैं क्या जो रहा हूँ, वहीं पे रहने दे. उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे काम का पानी रहेगा. कहते मैं कह रहा हूँ, तो देख दीवार के ऊपर राइफल टंगी हुई थी. कहते मैं राइफल उठाई, मैंने ठा उसको मार दिया. बेटा वहीं पे ढह गिर गया. इतनी देर में, बापूजी क्या किया आपने, तो क्यों चिल्ला रही है. मैंने ठीक कर, उसको ठोक ठा मार दिया. शुक्र है पोता नहीं आया. कहता शुक्र है वो बच गया. और फिर जब मैंने देखा कि 2 लाशें मेरे सामने पड़ी हुई हैं, और जब मुझे थोड़ा सा होश आया, गुस्से से मैं बाहर निकला, तो मैंने देखा मैंने तो अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी है. फिर मैं ही गया और मैंने जाके वहाँ पुलिस में रिपोर्ट कराई कि मेरे हाथ से 2 ये खून हो गया, और तब से मैं जेल में हो गया. तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई ना. कहता मैंने बची बसाई अपनी गृहस्थी को तबाह कर दिया एंगर से. तो सारे बच्चों को कह रहे हैं, कहते बच्चे गुस्से से हमेशा बच के रहना, गुस्सा आपको तबाह कर देता है. ये मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि एंगर से इतनी बड़ी चीजें भी हो जाती हैं. व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, you find that a group of youngsters had gone to a restaurant to celebrate birthday, and there they started having an argument, and within that little period मारा पीटी करी और एक को मार दिया. गए थे बर्थडे मनाने, एंजॉय करने, और गुस्से में आकर मर्डर करके चले आए, डेथ करी. वरी क्या होती है, चिंता चिता समान. आपने सुना होगा ना ये मुहावरा, चिंता चिता समान. एक चाइनीज प्रॉवर्ब है, मैं चाइनीज को बहुत वो मानती हूँ बुरा, पर प्रॉवर्ब ठीक है उनका. प्रॉवर्ब ये है, द बर्ड्स ऑफ वरी कीप ऑन फ्लाइंग ओवर योर हेड, लेट देम फ्लाई. हर एक को चिंता आती है कभी ना कभी, बट डोंट अलाउ देम टू मेक अ नेस्ट इन योर हेड. मतलब घोंसला मत बनाने दो, वहां पे टिके ना रहने दो, आए चले जाए. तो वरी जो होती है, वरी हमको खा लेती है.
नेगेटिव इमोशन है, अनप्लेजेंट खा लेती है। और मेलंकली, डिप्रेशन में चले जाना। देखिए पीछे हम बहुत बड़े कोरोना वायरस में से गुजरे हैं, एंड पीपल हैड लॉट ऑफ डिप्रेशन, उसमें से वो इमर्ज नहीं कर सके हैं, एंड दैट इज द रीजन मेंटल हेल्थ हैज बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट। और मेंटल हेल्थ क्या है? अगेन ईक्यू, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके अंदर। तो मेलंकली से बाहर निकलना है, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट, हैप्पी। ट्रांसपोजिशन हमारी, हमारा एटीट्यूड आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। अब इस चीज के लिए क्या करो? डिस्ट्रैक्शन। गुस्से आ रहा है, गुस्से से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दो, किसी और चीज में ध्यान लगा दो ताकि गुस्सा शांत हो जाए। एंड देन रीफ्रेमिंग, अपनी लक्ष्य को रीफ्रेम करो, अपने सोचने को रीफ्रेम करो ताकि आप उन इमोशन से बाहर निकल जाओ। तो करना आसान नहीं होता, lot of training is required, lot of effort is required to come to that point. यहां तक बात ठीक लग रही है आपको? Yes, हेलो ma'am. जी, ठीक लग रही है? और नीचे वो आदमी क्या झंडा लेके खड़ा है? सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को हमने रेगुलेट करना है। अब कैसे? अब यहां देखिए, आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस क्या करती हैं? जब हमारी नेगेटिव इमोशंस आपे से बाहर हो जाती हैं, जैसे गुस्सा, मैंने आपको बताया कि गुस्से में उसने दोनों अपने बेटे बहू को मार दिया। दे एम्पेयर रीजनिंग, रीजनिंग खत्म हो गई थी ना उसकी, नहीं तो रीजनिंग होती तो वो बेटे बहू को मारता नहीं मारता। इवन स्मार्ट पीपल समटाइम्स एक्ट स्टूपिडली। अब जो जाते हैं शादी के अंदर और वहां पे लड़ाई शुरू करके कई बार ब्राइड ग्रूम को मार देते हैं, कुछ कर देते हैं, मतलब गए थे आप खुशियां मनाने और वहां पे आप मातम खड़ा कर देते हैं। मे इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट क्रॉनिक इमोशनल प्रॉब्लम्स विल रिजल्ट। क्या होगा अगर क्रॉनिक इमोशन होती जा रही है तो क्या होगा? क्लिनिकल डिप्रेशन, क्रॉनिक एंजाइटी और हॉस्टिलिटी। आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी सेहत पे इफेक्ट पड़ेगा, और आपकी प्रीडिस्पोजिशन पे आप हॉस्टाइल हो जाएंगे, क्रॉनिक एंजाइटी रहेगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऐसी सारी चीजें हो जाएंगी। आपका कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, काया पे इफेक्ट होता है और आप रोगी बन जाते हैं। तो इसलिए मैनेजिंग इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि इमोशनल डिसफंक्शंस क्या क्या हो जाती हैं। अगर आप नेगेटिव इमोशन में चलते जाओ तो क्या नतीजा होता है? ऑल और नथिंग थिंकिंग, आपकी थिंकिंग जो है वो डैमेज होती है। आप देखो, जब आप गुस्से में होते हो तो आपकी रीजन काम करती है? नहीं। आप कहते हो क्या करना था, मुझे समझ नहीं आ रहा, या घबराहट होती है तो आप कहते क्या करना था, समझ नहीं आ रहा, थिंकिंग इफेक्ट हो जाती है। ओवर जनरलाइजेशन, आप कहते नहीं सब ऐसे होते हैं, सब ऐसे होते हैं, सब ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं कुछ नहीं अच्छे होते, तो आप ओवर जनरलाइज कर देते हो। एक्सेसिव वरिंग, वही द बर्ड्स ऑफ वरी कीप ऑन फ्लाइंग, वो घोंसला बना लेते हैं और घोंसला बना के फिर आपके सिर पे बैठ जाते हैं। देन डिस्क्वालिफाइंग द पोजीशन, मतलब जो भी पोजीशन है उसको क्या गया, नहीं इससे तो कुछ नहीं हो सकता, बेकार है, ऐसा हो जाता ना। नहीं, हाँ हिंदुस्तान बेकार है, क्या लिखा है? अभी कोई बात ऐसी कर रहा था, मैंने कहा शुक्र समझो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, तो जो उनकी हालत हो रही है वो हमारी, हम हिंदुस्तान में हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं उनसे। फिर जंपिंग टू नेगेटिव कंक्लूजन, ठीक कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, ये तो है ही बुरा, तो होगा ही खराब। बच्चे को कहते तू है ही पागल, तू तो ऐसे ही तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और बच्चे को उसका असर हो जाता है। बच्चा वाकई सोचता है कि हाँ मैं तो कुछ बन ही नहीं पाऊंगा, और जिंदगी उसकी खराब हो जाती है। और स्टेटमेंट्स देते हैं, शुड, तुमको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। अरे शुड कुड ये मत यूज करो, आज अभी इस वक्त जो हो रहा है उसको देखो क्या हो रहा है, ठीक है? लेबलिंग एंड मिस लेबलिंग, लेबल लगा देते हो जैसे बच्चे को, तो है ही निकम्मा, कुछ कर ही नहीं सकेगा। अब ये कहने से क्या था, मेरे पास ऐसे केसेस आए हुए हैं, मुझे याद है एक मेरे पास थापर इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग लड़का आया था, टोटल
नर्वस ब्रेकडाउन। कहता मैं किताब खोलता हूँ, मुझे ब्लैंक पेपर नजर आता, मुझे किताब नजर ही नहीं आती, चीजें नजर ही नहीं आती। और फिर काउंसलिंग जब करी मैंने, कैथारसिस करवाया, सब करवाती, तो आपको पता क्या पता चला कि वो देखने में थोड़ा छोटा था, दाढ़ी मूछ ज्यादा नहीं आई थी। तो उसका बाप आते जाते क्या देता था, अरे दाढ़ी मूछ वाला नमर्द, तू कुछ नहीं कर सकेगा, दाढ़ी मूछ मेरा नमर्द, तू कुछ नहीं कर सकेगा। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम गलत नहीं थे, तुम्हारे पिताजी गलत थे। कहता नहीं मेरे पिताजी कैसे गलत थे? मैंने कहा मैं, तुम मुझे मानते हो ना कुछ? कहता हाँ आपको मैं बहुत मानता हूँ। मैंने कहा मैं कह रही हूँ तुम्हारे पिताजी बिल्कुल गलत थे, उन्होंने बहुत गलत काम किया है। कहता अच्छा ये हुआ है। अब देयर वाज समबडी हु सेड कि नहीं तुम ठीक हो, तुम कर सकते हो। मैंने कहा तुम थापर में पहुंच गए कंपटीशन करके, और तुम कह रहे हो तो तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम कर सकते हो। एंड देन आफ्टर काउंसलिंग वाज ओवर एंड ऑल, मैंने कहा खोल के देख ले किताब, कुछ पढ़े जा रहे। कहते खोला, कहता आई कैन रीड एवरीथिंग, आई कैन रीड एवरीथिंग। आप समझ रहे हो ना, अगर ठीक लेबलिंग करो तो बच्चा ना भी बहुत लायक हो तो भी कुछ करके निकल जाता है, मिस लेबलिंग करो तो बच्चा खराब निकल जाता है। एंड पर्सनलाइजेशन, फिर आप पर्सनलाइज कर लेते हो, हाँ मैं तो हुई ये, मैं तो हुई निकम्मा, मैं तो कुछ कर नहीं सकूंगा। एंड क्रिटिसिज्म, कंटेम्प्ट, आप क्रिटिसाइज करते रहोगे, आप नफरत करते रहोगे, तो दूसरा जिसको आप नफरत करोगे या क्रिटिसाइज करोगे वो अपनी नीचे गिरता जाएगा, सेल्फ एस्टीम उसकी डाउन होती जाएगी। अब इन चीजों का आपका फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। क्या? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, डिजीजेस। कार्डियोवैस्कुलर क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस हैं। हार्ट अटैक हो जाता है इसमें जाते जाते। तो अगर आप नेगेटिव चीजों में जीते जाओगे तो कार्डियोवैस्कुलर चीजें जो है होंगी। कभी आपने देखा, सोचा कि जब आप नेगेटिव इमोशन में होते हो आपकी सांस चढ़ जाती है, ऐसे शुरू हो जाता है। सांस जब इस तरह की चढ़ेगी तो आपके बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है। एक और डिजीज बहुत है, और इंडिया में डायबिटीज इज कमिंग लाइक ऑलमोस्ट कोरोना। आपको पता है बहुत डायबिटिक लोग हैं, डायबिटीज 2 जो है बहुत है। और उसका कारण क्या है? नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस में जब हम जीते रहते हैं, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती हैं, डायबिटीज हो जाती हैं, कैंसर, ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन, ये सब चीजें जाती हैं। आप सोचोगे कैंसर तो भी बीमारी है, हाँ बीमारी है, पर कैंसर भी क्यों होती है? आप जब नेगेटिव चीजें सोचते जाओगे आपके बॉडी पे प्रभाव पड़ता जाएगा। फिर जो सेल्स डैमेज करने वाले हैं वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और आई हैव कम अक्रॉस पीपल के काउंसलर लोग आते भी हैं, सलाह भी करते हैं। कोरोना के बाद लोगों को बहुत डिप्रेशन हुआ है, लेकिन जो लोग कोरोना के अंदर पॉजिटिव रहे हैं, काढ़ा पीते रहे, कैन यू इमेजिन? वो अंग्रेजी दवाई नहीं खाते, काढ़ा पी रहे थे, वो कहते नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। वो जब बाहर निकले तो उनको कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं था, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग करी, पॉजिटिव चीजें सोची अपने बारे में, और वो बाहर निकल आए इसमें। दिस इम्पैक्ट्स ऑन रिलेशनशिप ऑल्सो। मैरिटल रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, पेरेंट्स की चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाती है अगर आप नेगेटिव इमोशंस में चलो, नेगेटिव इमोशन में। एंड इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ हो जाती है। आप डिप्रेशन में रह रहे हैं, मेंटल हेल्थ खराब हुई तो फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है साथ में। तो आप ये सोच के देखिए कि इमोशंस कितना हम पे प्रभाव डालती हैं, कितना प्रभाव डालती हैं, क्या हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं? और ये देखिए, एक्सेसिव हॉस्टिलिटी किल्स। अगर आप हॉस्टाइल हैं, दूसरे के प्रति हॉस्टाइल है, अपने प्रति हॉस्टाइल है, इट कैन किल। दूसरे के प्रति हॉस्टाइल तो उसको मारोगे, अपने प्रति हॉस्टाइल तो अपने आप को आप मार रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो। The subtle and complex abilities which underlie people skills, underlie क्या करते हैं? अच्छी चीज अगर आपने मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस करनी तो क्या करोगे? Being attitude towards others emotion, दूसरों के नहीं सॉरी अट्यून्ड, एटीट्यूड नहीं, अट्यून्ड टू अदर्स इमोशन, दूसरे की इमोशन को समझना, दूसरे के भावों को समझना,
इसको एम्पैथी कहते हैं, मैं बाद में भी एम्पैथी वर्ड आपको करके बताऊंगी। ये क्या हम एम्पैथी रखते हैं? क्या हम दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं? आप क्या बच्चे की फीलिंग को समझते हैं? क्या पति पत्नी एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं? देन promoting comfort in others through the proper use of display rules. क्या हम अगर दूसरे की इमोशन को समझते हैं तो क्या हम उसको कंफर्ट दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, अपने प्यार से, अपनी केयर से उसके मन को बाम लगा सकते हैं, ठंड डाल सकते हैं? दिस इज प्रमोटिंग कंफर्ट. Through my own nurturing behavior, can I make somebody else more relaxed, more comfortable? Then using own emotional display to establish a sense of rapport. अपने आप का इमोशनल डिस्प्ले क्या करो? पॉजिटिव इमोशनल डिस्प्ले करो, ताकि आप दूसरे के साथ तालमेल बना सको, ब्रिज बना सको. रैपो का मतलब यही ना कि आप उसके साथ तालमेल बना सकते हो, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, आप उसके साथ एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हो. अब ये चीजें सब सुनने में आपको बहुत आसान लग रही होंगी, पर जब करने जाते हो तो इतनी आसान नहीं होती. आपको घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. वो है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान. आप अभ्यास करते रहते हो. देख रहा वो छोटे से कुत्ते को छतरी लगा के बारिश से बचा रहा है, तो वो कुत्ता उसको प्यार करेगा कि नहीं करेगा? कि आप जब दूसरे को प्यार देते हो तो वो प्यार आप तक लौट के आता है. नाउ व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इतनी बात करते रहे तो अब हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस भाई है क्या चीज. द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स. अपनी फीलिंग को रिकॉग्नाइज करते तब हम दूसरे की फीलिंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. फॉर मोटिवेटिंग आवरसेल्फ. अब कहते हैं ना कि आपका अब तो आईएएस वालों को भी ये चीजें सिखाई जाती हैं कि भाई मोटिवेशन कैसे करो, अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कैसे करो. मोटिवेट आप तब करते हैं जब उसकी फीलिंग को समझें, क्योंकि फीलिंग्स ही मोटिवेट करती हैं आपको. अपने आप को समझिए, अपनी फीलिंग को समझ के दूसरे की फीलिंग को समझिए, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं. एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस. और जब आप अपनी फीलिंग को समझेंगे तब आप दूसरे की फीलिंग को भी मैनेज कर सकते हैं, अपने अंदर भी और अपने रिलेशनशिप के अंदर भी. तो ईआई का मतलब ये है कि हम अपने आप को समझें ताकि हम दूसरे को समझ सकें, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकें और हमारा बिहेवियर बेटर हो, हमारी जिंदगी खुशहाल बने. वी शुड बी हैप्पी पीपल. वी ऑल वांट टू बी हैप्पी. तो ईआई आपको उस हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है. अब अगर ईआई है तो आप साइकोलॉजिकल हेल्थ भी चाहते हैं इसके लिए. तो सबसे ऊपर क्या चीज आ रही है? इमोशनल हेल्थ. साइकोलॉजिकल हेल्थ में इमोशनल हेल्थ है जो आपकी है सबसे ऊपर होती है, फिर आपकी सोशल हेल्थ, फिर मेंटल हेल्थ आती है. इमोशनल हेल्थ है तो सोशल हेल्थ भी है. सोशल हेल्थ में क्या आएगा? दूसरे के प्रति प्यार, दूसरे के प्रति अच्छी भावना, दूसरे के प्रति अच्छी तरह बात करना. हम बच्चे को सोशलाइज करना नहीं सिखाते. सोशलाइज करने के लिए क्या होता है? मैं कहती हूँ 3 शब्द होते हैं जिनको यूज करिए आप तो सोशल बिहेवियर बनता है. क्या? प्लीज गिव मी दिस. प्लीज मुझे ये दे दीजिए. दूसरा है थैंक यू. अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो कहो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया है तो से आई एम सॉरी. हम सॉरी भी नहीं कहते, हम प्लीज भी नहीं कहते, हम थैंक यू भी नहीं कहते. ये 3 शब्दों का अगर हम को ये सिखाएं तो आपका बच्चा हर जगह सक्सेस स्टोरी पे जाएगा. सोच के देखिए, एम आई करेक्ट? क्या आपने बच्चे को प्लीज कहना सिखाया है? टीचर के लिए को प्लीज मैम मे आई हैव दिस, प्लीज मैम ये मुझे समझा दीजिए. तो मैम कहेगी हाँ आओ समझाओ. हाँ मुझको ये समझाइए मैम. ठीक है मैं समझाऊंगी तुझको अभी. डांट पड़ जाएगी. और अगर मैम ने क्लास अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ अच्छा किया है तो कहो थैंक यू मैम. कि आप में जो टीचर्स कहीं बैठे होंगे यहाँ मेरे इसमें ग्रुप में,
कितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास के बाद आपको थैंक यू कहते हैं, और जो कहते हैं वो आपके दिल में जगह बना लेते हैं। एम आई करेक्ट? क्यों जी, ठीक बात कह रही हूँ कि नहीं? That's true, ma'am. ओके, पर क्या हमने अपने स्टूडेंट को सिखाया कि अगर आपने क्लास में एंजॉय किया है तो लर्न टू से थैंक यू? मैं अपनी बच्चों को सिखा देती थी, स्टूडेंट को मैं कहती थी तुम अगर अच्छा बिहेव कर रहे हो तो मैं कहती हूँ शाबाश, तो अगर मैं अच्छा बिहेव कर रही हूँ तो तुम कह सकते हो थैंक यू मैम, हमें मजा आया। तो आप पता करते थे थैंक यू। फिर एक लेवल पे आ जाते थे कि मैं कहती थी अच्छा मैं अटेंडेंस ही लूंगी, देखती हूँ कि कितने बच्चे आते हैं। 90 to 95% अटेंडेंस होती थी। सब चीज कहने से सोशल हेल्थ, इमोशनल को आपने करा तो आप सोशल हेल्थ में आए, और फिर मेंटल हेल्थ, आपकी थिंकिंग जो है, जब आप शांत भाव में हैं, पीस में हैं, ट्रैंक्विल हैं, योर लर्निंग विल बी मच बेटर। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई हैं, मैंने अपने आप भी स्टडीज ये करके दिखाई हुई हैं कि आपका जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस आपका स्कोर कम हो जाता है, जब आप रिलैक्स्ड होते हैं आपका स्कोर बेटर हो जाता है। तो अगर आप मेंटल हेल्थ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा आसानी से अच्छी तरह पढ़े, चीटिंग ना करे, ऐसी फिजूल चीजें ना करे, तो उसको शांत रहना सिखाइए। उसको ये सिखाइए कि मार्क्स आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया, तुम्हारा समझ आना जो है चीज, दैट इज इम्पोर्टेंट, और उसमें से खुशी ढूंढना इज मोर इम्पोर्टेंट। स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ किसी मंदिर मस्जिद दरगाह में जाके कुछ खड़काना नहीं है। स्पिरिचुअल बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, एम आई हैविंग वैल्यूज, एम आई अ गुड ह्यूमन बीइंग? जब आप गुड होंगे तो आप में खुद खुशी आएगी, तो साइकोलॉजिकल हेल्थ आपकी बेटर बनेगी। अब यहाँ देखिए एलिमेंट्स ऑफ शेयर्ड बाय साइकोलॉजिकल हेल्दी पीपल। जो हेल्दी पीपल होते हैं वो क्या शेयर करते हैं? दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ, अपने अंदर भी अच्छा महसूस करते हैं। आई एम गुड, सैंग्विन है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्ट है। दे फील कंफर्टेबल विद अदर पीपल ऑल्सो, कहते हैं मैं भी अच्छा हूं, आप भी अच्छे हो, आई एम गुड, यू आर गुड, आई एम ओके, यू आर ओके। तो फिर क्या होता है? ब्रिजेस बन जाते हैं, तालमेल बन जाता है। दे कंट्रोल टेंशन एंड एंजाइटी। If they are healthy people, they can control their tension. अब मैं थोड़ा सा फिर अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे बहुत टेंशन हुई, पर मैंने कंट्रोल की और मैंने कहा नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो मैंने फिर पेन ड्राइव अपनी बदली, ठीक है, एंजाइटी को रिलीज कर लिया। और कैसे रिलीज करी? डॉक्टर सुनील का यू आर वेरी नाइस, आपने मुझे इतना अकोमोडेट कर दिया, और इट वाज सो स्वीट। ही सेड कि कोई बात नहीं, मैं आपको नीचे आके रिसीव कर लूंगा। तो क्या हुआ? हमने एक वो ब्रिज बना लिया आपस में, एंजाइटी भी खत्म हो गई, बात भी हो गई। मैं आपके सामने आज बैठी हूँ, नहीं तो आज मैं आपके सामने ना होती अगर वहां पे मैं अपने आप को वॉलो कर लेती। दे आर एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ। देखिए जितने दिन हम जिंदा हैं डिमांड्स ऑफ लाइफ तो होती रहेंगी। अब ये क्या हुआ, आज मेरे साथ डिमांड ऑफ लाइफ थी ना, आती रहेगी, आपके साथ भी डिमांड ऑफ लाइफ आती है। आप बाहर निकले, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, आपने खाना बना के लेके जाना था, गैस खत्म हो गई है, डिमांड ऑफ लाइफ आ गया। लेकिन आप कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आज पराठे नहीं बनाए तो आज सैंडविच लेके चले जाएंगे। ओके, यू हैव एन ऑल्टरनेटिव देयर। एंड दे कर्ब हेट एंड गिल्ट, और ये नफरत को कर्ब करते हैं। और अगर आप नफरत को कर्ब कर लो तो आप गिल्टी नहीं होते, आप सॉरी कहना सीख लेते हो। जब सॉरी आप कह देते हो अपने अंदर से आप उबर जाते हो। जो मैंने आपको कहा 3 वर्ड्स वो यूज करके, प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी, इनको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, बहुत फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में ना, एक खुशी सी आ जाती है इसके साथ। नाउ isn't good intelligence enough for being effective teacher? आप सब टीचर हो यहाँ जो ज्यादातर बैठे हुए हो, तो भाई होशियार होना, नंबर ज्यादा आए, 90% आए, टॉप कर गए, तो दैट इज एनफ? नो, दैट इज नॉट एनफ। व्हाई शुड वी ब्रिंग मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस? तो फिर मैनेजमेंट ऑफ इमोशन करने का जरूरत क्या है? तो आप दोनों का डिस्टिंक्शन देखिए। इंटेलिजेंस क्या देती है हमको?
analyzing things, reasoning, logic, verbal skill, spatial ability, attention, memory, judgment. अब ये चीजें they are a weak predictor for achievement, maybe as much as 20 to 25%. 100% नहीं प्रिडिक्ट करती. और मेरी जो PhD की रिसर्च थी वो यही थी कि इट वाज आई ओपनिंग. एंड मेरे ब्रिटिशर्स थे जो एग्जामिनर लगे थे, उसमें मैंने ये इंटेलिजेंस और स्कूल अचीवमेंट, कॉलेज अचीवमेंट जो कोरिलेशन आया, दैट वाज जस्ट 30%, 40%. तो आई सेड देयर इज समथिंग एल्स टू अचीवमेंट देन ओनली इंटेलिजेंस. और वो चीजें जो आई वो पर्सनैलिटी आई थी. Your tranquility, your introversion, your tolerance to people, ये चीजें जो थी ये आपकी जो थी अचीवमेंट को आगे लेके चली. तो इसका मतलब ये ठीक है, इंटेलिजेंस जो है 30-40% देती है आपको. ऑफ कोर्स इट इज गिविंग यू. विदाउट इंटेलिजेंस यू कांट रीच योर हायर डिग्रीज. ये बात बिल्कुल सही है. लेकिन साथ में अगर आपकी इमोशनल फैक्टर्स को कंट्रोल भी किया जाए तो वो रिसर्च क्या शो करती है, इन एवरी फील्ड योर EQ इमोशनल क्वोशिएंट इज 2 times एज इंपॉर्टेंट एज योर कॉग्निटिव एबिलिटी. अभी जो मैंने देखी कॉग्निटिव एबिलिटी देखी, इंटेलिजेंस देखी, लेकिन EQ जो है वो 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है इंटेलिजेंस से. द इंटेलेक्ट एंड इट्स फंक्शंस लाइक रीजनिंग, मेमोरी, जजमेंट, लॉजिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, they are cognitive functions. जो cognitive functions है important है, they are not important नहीं है. लेकिन almost 90% of successful leadership or leaders are attributable to EQ. EQ से वो बनते हैं successful, not by just this sort of thing. The emotional part of behavior, that is the emotional part of behavior. 90% ये रिसर्च है. और ये कहाँ हुई है, इंडस्ट्री सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुई है. और मैंने ये वर्कशॉप इंडस्ट्री सेक्टर में करके दिखाई हुई है कि उनकी परफॉर्मेंस, बड़े तगड़े ब्राइट लोग इकट्ठे किए थे, लेकिन लड़ाई इतनी करते थे आपस में कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी. मैंने जब कराया, मैंने तो EQ होता गया. ये जो चीजें थी, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे उठना, इकट्ठे बात कर लेना, ये जब सिखा दिया उनको तो परफॉर्मेंस ग्राफ जो था नीचे जो 30-40% था वो 60-70% पे पहुंच गया 6 महीने के अंदर. तो ये जो होता है ये एक्शन होता है रिस्पॉन्स टू कॉग्निशन एंड इमोशन, दोनों मिलके आपको रिस्पॉन्स देते हैं. हमारे एक्शन जो हैं हमारे दिल से ज्यादा गवर्न होते हैं, हार्ट से कम होते हैं. ये याद रखिएगा. वी आर गवर्न मोर बाय हार्ट फीलिंग्स देन बाय हेड. तो इसलिए तभी उन्होंने रखा है कि भाई EQ को हम पढ़े, है ना. अच्छा, अब आज जो हम कर जाते हैं, थोड़ा सा बता रही हूँ, हम थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस देखेंगे और थोड़ा सा डायरेक्शन देखेंगे कि क्या स्किल्स हमें आनी चाहिए और कैसे हम EQ को इम्प्रूव कर सकते हैं. वैसे तो EQ को कराने के लिए मैं तो एक हफ्ते की वर्कशॉप कराती थी IAS वालों को, PCS वालों को, HCS वालों को, क्योंकि पूरी जिंदगी का एक निचोड़ होता है. लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको ये 2 दिन में, आज और कल में मिला के करेंगे तो यू विल बी फेमिलियराइज्ड विद दिस. आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देंगे और आप अपने अंदर खुद फर्क महसूस करेंगे कि हाँ EQ करने से हमें ये फर्क हुआ. ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस. हमारे तो माइंड है ना, हमारे 2 तरह का माइंड होता है. एक रैशनल माइंड होता है, एक इमोशनल माइंड होता है. थोड़ा सा करके देखिए, सीधी लकीर ऊपर लेके जाइए और ऐसे करके सिर तक लेके जाइए तो इससे 2 सिर के 2 हिस्से होते हैं. एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है. आपका लेफ्ट साइड जो होता है वो रीजनिंग है, लॉजिक है, रैशनल माइंड है, और जो राइट साइड होता है वो आपका इमोशनल माइंड है. अब रैशनल माइंड क्या करता है, इट इज द मोड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, चीजें समझना, मतलब निकालना, लैंग्वेज करना, पढ़ाई करना, रट्टा लगाना, ये सब उसमें जाता है. मोर प्रोमिनेंट इन अवेयरनेस, थॉटफुल, एबल टू पॉन्डर एंड रिफ्लेक्ट. और तो कॉग्निटिव पार्ट, जो कॉग्निटिव करा में मेमोरी है, चीजें याद रखना, उनको समझना, 2 × 2 4 करना, लॉजिक करना, मैथमेटिक्स करना, फिजिक्स करना, ये सब आपका रैशनल माइंड है.
इमोशनल माइंड क्या करता है? द इमोशनल माइंड, दिस मे बी अ लिटिल इम्पल्सिव, थोड़ा सा इम्पल्सिव होता है, पावरफुल होता है। पहले भी कहा ना, फटाक से जो चीज आई कर दी, फटाक से जो हो गया उसमें कंट्रोल कर लिया। बट हैव इंट्यूटिव थिंकिंग, इंट्यूटिव थिंकिंग, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्कूल डेज में जाइए, आप मैथ्स कर रहे थे, एक सवाल निकल ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था, क्या कर रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ हो रहा था। आपने कहा चलो छोड़ो जी, मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, अब देखा जाएगा कल। और सोते सोते सपने में वो सवाल सब हो गया आपका। आप किसी के साथ ऐसा हुआ है कि सोते सोते आपने एक पोएम लिख दी, एक कहानी लिख दी, एक चीज को सॉल्व कर लिया? आप तो सो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन आपका जो इंट्यूटिव माइंड है वो काम करता रहता है इस वक्त। इस वक्त आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, आपका इंट्यूटिव माइंड जो होता है बहुत क्रिएटिव होता है, और वो चीजें ये निकाल के ठीक कर देता है। थोड़ा इलॉजिकल लगता है कि भाई है कैसे, सपने में कैसे कर दिया, मैं काम तो कुछ कर नहीं रही थी, कर नहीं सकता, फिर भी मैंने सवाल निकाल दिया। इट हैज कन्विक्शन, इलॉजिकल है पर कन्विक्शन होती है, वो सवाल ठीक कर दिया आपने, विच मे बी डीपर काइंड ऑफ सर्टेनिटी, अंदर से वो सर्टेनिटी आती है। कई बार आपको ऐसा होता नहीं है कि भाई इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ हो रही है, माओ को, या मदर्स बैठी होंगी बहुत सारी, आप उठते हो कहते बेचैनी हो रही है आपको, नहीं मेरा बच्चा ठीक नहीं है, बेचैन है। आप फोन करते हो, हॉस्टल में है, बेटे ठीक हो? नहीं मामा ये हो गया था, ये हो गया था। तो बेटे बताया नहीं आपने, क्या बताता आपको ऐसी परेशानी होती? कहते मुझे तो परेशानी हो गई ना, तुम्हारा नहीं बताने पे भी मुझे परेशानी हो गई। क्यों? जो मदर्स बैठी हैं, ऐसा हुआ है आपके साथ कि नहीं हुआ? इंट्यूटिवली आपने बच्चे की परेशानी समझ ली, ये वाली। इट इज अगेन डिस्टिंक्शन बिटवीन हेड एंड द हार्ट, द लॉजिकल एंड द इमोशनल एस्पेक्ट। लॉजिक एंड इमोशन, इमोशन जो है दे आर मच डीपर, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी वो गवर्न करती है। अब this whole thing was developed by Daniel Goleman. Daniel Goleman ने इंडस्ट्री वर्क के साथ काम किया, वर्क सिचुएशन में काम किया, तो उसने देखा कि भाई खाली इंटेलिजेंस काम नहीं दे रही, कुछ और चीजें हैं जो काम दे रही हैं, और वो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये है इन प्राइमरी लीडरशिप, रियलाइजिंग द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हम जो लीडरशिप चाहते हैं, अब जैसे इंडस्ट्री में आप मैनेजर बन रहे हो तो आप लीडर बन रहे हो, आईएएस में आ रहे हो तो आप लीडर बन रहे हो, पीसीएस में जा रहे हो टीचर बन रहे हो, टीचर इज द लीडर ऑफ द क्लास। और कौन सा टीचर ग्रुप को लेके चलता है साथ? जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कर लेता है बच्चों की, तो बच्चे उनके साथ होते हैं। फिर वो जो पढ़ा के जाता है बच्चे कभी भूलते नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल मतलब कॉग्निटिव चाह रहे हो, रट्टा मारेंगे, नकल मारेंगे, लेकिन अंदर खाली होगा। तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज क्या क्या हैं? कॉम्पिटेंसी मतलब इमोशनल, उसमें क्या क्या चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक 5 डायमेंशन, गोल्डमैन ने 5 डायमेंशन दी हैं, इसको 2 में डिवाइड कर लेते हैं। एक पर्सनल कॉम्पिटेंस है, एक सोशल कॉम्पिटेंस है। पर्सनल कॉम्पिटेंस है, सबसे पहले मुझे अपने आप को चेंज करना है, आई हैव टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन माई सेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। फिर है सेल्फ मैनेजमेंट, अच्छा मैं ये हूं तो मैंने अपने आप को कैसे मैनेज करना है। मैं गुस्सैल हूं तो मैंने अपने गुस्से को कैसे मैनेज करना है। और तीसरा है मोटिवेशन, प्रेरणा, अपने अंदर मोटिवेशन जगानी, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। ये जब आपके दिल में आ जाता है फिर आप उस काम को कर लेते हो। और सोशल कॉम्पिटेंस क्या है? मैंने कहा था ना एम्पैथी की, मैं अब बात आगे भी करूंगी। एम्पैथी, टू पुट माई सेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज एंड फील फॉर दैट पर्सन। लेकिन
to put yourself in somebody else's shoes, you have to take off your own shoes. अब वो shoes क्या है? हमारी नेगेटिव फीलिंग। अगर हमें अंदर से उससे नफरत आ रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, तो हम उसको समझ नहीं सकते। स्टूडेंट से भी कहते हैं बेकार सिर्फ खाने के लिए आ जाते हैं, तो हम उनके साथ एम्पैथी नहीं कर सकते। अगर कहते नहीं, इसको हमने प्यार से समझाना है, इसको हमने लर्निंग करवानी है, सिर्फ लेक्चर देके चले लर्न कर रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं, फिर आप उनको प्रैक्टिकल कराते हो, एक्सपेरिमेंट कराते हो, चीजें कहते हो करके देखो। तो फिर आप जब करके देखते हो तो आप उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हो ना, फीलिंग को समझते हो तो वो एम्पैथी होती है। यू पुट योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज बट यू टेक ऑफ योर ओन शूज। अपनी फीलिंग्स को, अपने एंगर को, अपनी नफरत को, अपनी डिस्डेन को, देखा क्या है बेकार का है, ऐसे नाक चढ़ा के कहना, उसको आप कंट्रोल करते हो, तब जाके आप उससे तालमेल बिठाते हो। एंड सोशल स्किल्स, वो फिर मैं जा रही हूँ सोशल स्किल्स के पर 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। प्लीज कहना, प्लीज का मतलब क्या है? ग्रैब नहीं करना दूसरे से, प्लीज नमन करके, नमस्कार करके उससे चीज लेनी है। ये जब होता है तो अगले को दे के खुशी मिलती है। मैं क्या आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े लिखे लोगों का सारा होता है, तो वाइस चांसलर की टी होती थी, कभी ऐसा होता था। आई स्टिल रिमेम्बर, वहाँ ऐसे टी थी तो एक स्वीट डिश आई है डूंगे में, तो मैंने भी ऐसे चम्मच आगे बैठाया कि मैं भी डाल लूंगी, ये तो मेरा है सारा। I just looked at him, क्या है ये पूरा डूंगा तो अपने आप ही खा लेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई सेड वो थोड़ा इलिटरेट, बिल्कुल अनकूथ आदमी है कि ये सारी चीज खा रहा है। और अगर वो यही कहता कि नहीं प्लीज मैं भी ले लूं थोड़ा सा, कहती हाँ लीजिए, तो प्लीज कहने का कितना फर्क पड़ जाता है। और फिर अगर किसी ने जैसे मान लीजिए अपनी कुर्सी खाली करके आपको दे दी, तो क्योंकि आप लेडी हो तो आपको थैंक यू सो मच। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं, मेरे एक मतलब साइकोलॉजी के कोलीग ही है, आदमी है, कहते हैं, तो मैंने कहा कि अभी लेडीज के लिए जब बस में जा रहे हो तो जगह खाली करने, कहता है मैडम मैं आपको बताता हूँ मैं तो बिल्कुल खाली नहीं करूंगा। मैंने कहा है क्यों? कहता है मैं एक बार जा रहा था बस में, तो एक औरत, 2 लड़कियां बैठी हुई थी, एक लड़की लटक रही थी, बिल्कुल गिरने वाली थी, तो मैंने अपनी जगह खाली करके उसको दे दी। तो दूसरी कह ली हो मैं भी लटक रही हूँ, और कहती कोई बेवकूफ तेरे लिए भी जगह खाली कर देगा। कहता वो दिन और आज का दिन, मैंने कहा मैं औरत के लिए कभी भी खाली करके नहीं दूंगा। उस लड़की को क्या कहना चाहिए था? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो वो 10 औरतों के लिए और सीट खाली करता। एक ने कह दिया एक बेवकूफ ने खाली की है, कोई और बेवकूफ मेरे लिए भी कर देगा। अब ये देखिए, ये कोई तरीका है बोलने का? सोशल स्किल्स है। अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है तो आप थैंक यू कहना सीखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप ये देखिए, ये मैं अपने ऊपर भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो ये करने से इतने डिविडेंड्स आते हैं, इतने डिविडेंड्स आते हैं। जो मेरे पीएम होते थे, मेरे क्लर्क्स होते थे, आई वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आल्सो, कुछ भी मेरे लिए करने को तैयार थे। जब मैं रिटायर भी हो गई, मेरे नाम से कोई जाके लेबोरेटरी में से चीजें निकलवा लेता था, चीजें निकाल के दे देता था लेबोरेटरी इंचार्ज। मैंने कहा कि बच्चे जब तक मैं ना को नहीं देना, कहता मैम आपका नाम ले दिया था तो मैं कैसे ना कर सकता था। और क्या होता था, मैं सिर्फ थैंक यू सॉरी ये चीजें कह देती थी और हाल चाल पूछ लेती थी, भाई ठीक ठाक हो ना, कुछ मदद मैं कर सकती हूँ, बस दैट वाज ऑल। ये कहते हैं क्या है, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा है। अब हींग फिटकरी तो कोई नहीं लग रही ना, आपने सिर्फ मुंह से कहा है ना थैंक यू सॉरी प्लीज, और रंग चोखा आता है, इससे डिविडेंड्स आपको बहुत मिलते हैं। तो ये 5 चीजें जो हैं, इसी को हम थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे और डिटेल में भी जाएंगे। ये इसी चीज को 5 कंपोनेंट्स EI है, ये मॉडल मैंने गोलमैन का ही लेके आपको दिखा रही हूँ। पहले है इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, सिर्फ कॉग्निटिव नहीं कि मैं दिमाग मेरा बहुत है, मैं सवाल बहुत अच्छे निकाल लेता हूँ या निकाल लेती हूँ,
ओके, अच्छी निकालते हो, बहुत अच्छी बात है, सवाल आते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, मेरी इमोशंस कैसी हैं? क्या मैं लोगों को प्यार की नजर से देख सकती हूँ, या नफरत की नजर से देखती हूँ, या गुस्से की देखती हूँ? मैनेजिंग वन्स ओन इमोशंस। अब अपनी इमोशंस क्या मैनेज करनी है कि आपको अंदर से लग रहा है गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से में बात मत कीजिए, चुप हो जाइए। जब गुस्सा शांत हो जाए तब बात कीजिए। ये मैं, क्योंकि काउंसलरों में ये चीजें यूज भी करती हूँ। मेरे पास एक कपल आए, दोनों बहुत पढ़े लिखे, दोनों डॉक्टर, अब बस डिवोर्स के किनारे बैठे हुए, कहते हम इनकम्पैटिबल, हम हो नहीं सकते। हम, मैंने कहा अच्छा चलो बात करते हैं, देखिए भी प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, क्या क्या आई, क्या क्या आई। तो पता चला कि भाई जब हस्बैंड को गुस्सा आता है, हाँ जी चाय का टाइम हो गया है, नहीं मेरी 4 बजे तक क्लास है, तो हाँ जहाँ थे हम, तो हस्बैंड को जब गुस्सा आता है तो वो बोलना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा फिर वाइफ आप क्या करते हो? कहते मैं भी इनको उसी गुस्से में जवाब देती हूँ। मैंने कहा अच्छा अब हम ऐसा करेंगे कि अब की दफा जब गुस्सा आएगा, जिसको भी गुस्सा है, हस्बैंड को या वाइफ को, तो दूसरा चुप रहेगा। दूसरे में भी गुस्सा आ रहा है लेकिन वहां से चले जाना, हट जाना, गुस्से को शांत हो जाने देना। जब शांत हो जाए तो कहना अब हम बैठ के बात कर सकते हैं। तो ऐसे उनको जब करवाती रही, रोल प्ले करवाया, बड़ी चीजें कराई कि गुस्से के अंदर आपने जवाब नहीं देना है। गुस्से को कमरे में से निकल के जाके बैठ के पानी पियो, जो मर्जी करना करो, शांत हो जाने दो। जब शांत हो जाए तब एक दूसरे से बात करो। फिर मैंने कहा, फिर जब होते रहे सेशंस होते रहे उनके, तो फिर मैंने कहा अब कैसा लग रहा है, जाना है हाई कोर्ट डिवोर्स के लिए? कहते नहीं अब हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा और वर्कआउट करके देख लेंगे। अच्छा, मैंने कहा थैंक यू, दैट इज वेरी गुड। फिर मैंने कहा अच्छा अब क्या करते हो? कहते हाँ अब जो गुस्सा आता है तो हस्बैंड कहता है मैं भी दूसरे कमरे में चलता हूँ, ये भी दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हम जब शांत हो जाते हैं तब हम फिर बैठ के बात करते हैं कि मैंने ऐसे कहा, तुमने ऐसे कहा। कहती मैंने भी ऐसे कहा, तुमने भी ऐसे कहा। ये कहते हाँ मैं भी गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहती हाँ मैं भी गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर फिर उसके बाद मैंने कहा उसके बाद क्या आता है? कहते उसके बाद हम कहते हैं अच्छा चलो बड़ी भूख लग रही है, खाना खाते हैं। तो मैंने कहा फिर हम कहते हैं, फिर हम बैठ के हंसते हैं दोनों कि हम क्या कर रहे थे। मैंने कहा फिर उसके बाद फिर वो जो डिवोर्स के कागज भरे हुए, वो कहते हैं कौन सा डिवोर्स के कागज? वो कोई कागज नहीं है। एंड दे वर प्रीटी हैप्पी एंड दे वर लिविंग वंडरफुली वेल। क्या? दोनों ने अपनी इमोशंस मैनेज कर ली। नेगेटिव इमोशन, एंगर को मैनेज कर लिया, इसी तरह डर को मैनेज करो, इसी तरह हेट्रेड को मैनेज करो, जेलसी को। जेलसी इज टेरेबल थिंग। जेलसी में पंजाब के आप जो आए हुए हैं कहते हैं मंजी खड़ी कर दो, कहते हैं खाट खड़ी, यूपी में कहते हैं खाट खड़ी करो, पंजाब में कहते हैं मंजी ठोकना। तो जेलसी में हम मंजी ठोकते हैं, खाट खड़ी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो इसी ठोकने में लगी जाती है और वो उसको वेस्ट कर देते हैं। Now, using emotions to maximize intellectual processing. इंटेलिजेंस को हमने अगर यूज करना है तो पॉजिटिव इमोशंस के साथ यूज कीजिए। भैया हाँ आई एम हैप्पी टू डू दिस सम और दिस फिजिक्स का प्रॉब्लम या साइकोलॉजी का प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिक्स करना है, मैं मजे में करेंगे, हम इकट्ठे बैठ के कर लेंगे, इंजॉय करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके सवाल ऐसे ऐसे हो जाएंगे, चीजें ऐसे ऐसे हो जाएंगी। एंड डिसीजन मेकिंग, लड़ाई जब होती है, मेरा नेक्स्ट सेशन आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट पे है ना, तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हम डिसीजन मेकिंग में गुस्से से डिसीजन मेकिंग करते हैं, शांति से नहीं करते। शांति से करें तो डिसीजन ठीक होता है, गुस्से में करें तो डिसीजन गलत हो जाता है। एंड डेवलपिंग एम्पैथी, सेल्फ वाली अवेयरनेस, एम्पैथी के बिना तो हम कुछ भी नहीं है।
अगर हम दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ सकते तो हम बेकार हैं। द आर्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, दिस इज द आर्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड मैनेजिंग इमोशंस इन अदर्स। जब हम दूसरे की इमोशंस समझ जाते हैं तो हम उसकी इमोशन को मैनेज कर लेते हैं। वो हस्बैंड वाइफ का क्या था, जब दोनों ने इमोशंस अपनी समझ ली तो दोनों एक दूसरे की इमोशन को मैनेज कर लिए, और जब मैनेज करने लगे तो बैठ के हंस सके, और डिवोर्स विवोर्स सब गायब हो गया सारा कुछ। यही चीज यहाँ पे साइड में भी लिखी है, गोल्डमैन के कैटेगरीज जो बनाई है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स, एम्पैथी इसमें बहुत जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे इसी को आगे हम और इलेबरेट करेंगे, क्योंकि ये एक एक चीज जो है हमें काफी आगे तक लेके चलनी है। और कुछ मैं आपसे करवाऊंगी भी। मैंने सोचा था कि मैं कल आपको करवाऊंगी। कल आप एक कागज पेंसिल अपने साथ जरूर लेके आइएगा, क्योंकि जो चीज हम कर लेते हैं ना हाथ से अपने आप ही, तो वो हमारे जिंदगी का हिस्सा हो जाती है। तो कल आप कागज पेंसिल लाएंगे अपने साथ? हेलो जी मैम, बिल्कुल। जी, कल कागज पेंसिल जरूर लाइएगा। और फिर मैं एक एक्सरसाइज लाई हूँ जो आपको कराऊंगी, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस आप करेंगे कि भाई मैं अपने बारे में क्या जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, और ये हम खुद करके देखेंगे अपने लिए। अब यहाँ पे है, दीज कॉम्पिटेंसीज डिटरमिन हाउ वी मैनेज आवरसेल्व्स, सच एज सेल्फ अवेयरनेस, कि हम अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले वह ना कि उंगली को उस तरफ मत करो, अपनी तरफ करो। जब हम किसी की तरफ एक उंगली पॉइंट करते हैं, 3 उंगलियां हमारे तरफ होती हैं। करके देखिए, जब बच्चे को डांट लगाते हैं एक उंगली से आगे करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। तो सबसे पहले ठीक किसको करना है? अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस कीजिए। नोइंग वंस इंटरनल स्टेट्स, ये करके अभी देख सकते हैं आप। अभी आप जो बैठे हुए हैं, अपने अंदर झांकिए, देखिए, अपने अंदर पूछिए, क्या मुझे ये चीजें अच्छी लग रही हैं कि नहीं अच्छी लग रही? क्या मुझे ये चीजें पसंद आ रही हैं या नहीं पसंद आ रही? पूछ के देखिए अपने आप से। अच्छा, क्या जवाब आया? पसंद आ रही हैं कि नहीं पसंद आ रही? या इसको एक और तरह से भी सोच के देखिए, अंदर झांक के देखिए, क्या मैं इंतजार कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि कब टाइम होगा, कब 4 बजेंगे और छुट्टी मिलेगी, या मन कर रहा है नहीं नहीं थोड़ा और टाइम आगे हो जाए, अच्छा लग रहा है? क्या फीलिंग हो रही है बताइए? टाइम आगे चले या टाइम खत्म हो जाए? ये तो आपने बताना है सोच के। हेलो, कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब टाइम का इंतजार कर रहे हैं कब खत्म हुए। आपकी चुप्पी भी ये कहती है कि भाई जल्दी खत्म हो जाए, अनप्लेजेंट लग रहा है। नहीं नहीं, खत्म नहीं हो मैम। डेफिनेटली आपका सेशन हर चीज में सेल्फ रियलाइजेशन ओके पॉइंट पे ला रहा है। हाँ, और अब मैं जब बंद करूंगी तो मैं आपको मौका दूंगी, आप मुझसे सवाल पूछिएगा। अच्छा जी बिल्कुल तो मैम। ये है नोइंग वंस इंटरनल स्टेट्स, प्रेफरेंसेस, क्या मैं प्रेफर करती हूँ या करता हूँ, एंड रिसोर्सेज एंड इंट्यूशन, इनको हासिल करने के लिए मेरे पास रिसोर्स है, मेरी इंट्यूशन काम कर रही है कि नहीं कर रही। एंड दीज कैन बी एलेबोरेटेड कैसे? एज इमोशनल अवेयरनेस, रिकग्नाइजिंग वंस इमोशंस एंड देयर इफेक्ट्स, कि अपनी इमोशंस को रिकग्नाइज कीजिए और उनका नतीजा क्या हो रहा है। अगर आपको प्लेजेंट लग रहा है तो नतीजा क्या है? आप कह रहे हो कि ये चलता रहे, मुझे मजा आ रहा है, मैं अपने बारे में जान रहा हूँ कुछ या जान रही हूँ। और अगर फीलिंग ये है कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो द इफेक्ट ये आप घड़ी देख रहे होगे कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। ओके, अरे तो मुझे तो नहीं कह रहे कि आप बंद करो। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया है। ओके ओके, अब सेल्फ अवेयरनेस में आगे क्या है? एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट,
नोइंग वंस स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन, ये मैं आपको कल सुबह एक्सरसाइज कराऊंगी। आप कागज पेंसिल लाएंगे और वो मैं एक्सरसाइज इसी पे दिखाऊंगी आपको, और फिर आप ये करेंगे। अच्छा, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वन सेल्फ वर्थ एंड कैपेबिलिटीज। हम लोग कई ये अपने अंदर सोचते हैं, हाय हाय मेरे से होएगा ही नहीं, हाय हाय मैं नहीं कर सकता। ये कभी मत कहिए, अपने जरूर कहिए, आई विल बी एबल टू डू, आई कैन डू, आई विल बी एबल टू डू, आई विल डेफिनेटली ट्राई, मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं ये कर लूंगी, मैं कर लूंगा। और आप में से जो बच्चे वाले हैं, अपने बच्चों के साथ भी ये कीजिए, नहीं बेटे आप कर लोगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और एफर्ट करो, आप कर लोगे। नहीं मैं नहीं कहना, नहीं अपने आप से कहो। वो एक गाना भी है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओके, यस दैट इज मोटिवेटिंग, हम होंगे कामयाब, वी विल बी एबल टू डू इट। आप करें तो ये करने के लिए मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, लेट अस नो अबाउट आवरसेल्फ। ये एक्सरसाइज हम